ہسپتال سٹی اسکین کی سہولت سے محروم ہے۔ کورونا مریضوں کا زیادہ لوڈ والے ہسپتالوں میں سٹی اسکین مشین خراب ہے۔ شعبہ حادثات میں نصب سٹی اسکین کئی سال سے خراب ہے۔ بات کریں گے بسام سلطان سے۔ بسام بتائیے گا۔ جی بالکل، شہر کا سب سے بڑا ہسپتال سی ٹی اسکین کی اہم ترین تشخیصی سہولت سے جو ہے وہ محروم ہو چکا ہے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں، جو کرونا کے پیشنٹس ہیں ان کا سب سے زیادہ لوڈ شہر کے اندر جو ہے وہ میو ہسپتال بیئر کر رہا ہے، اور جو کرونا وائرس کے پیشنٹس ہیں ان کے لیے جو اہم ترین تشخیصی سہولت ہے HRCT، اس سہولت سے جو ہے وہ اب میو ہسپتال محروم ہو چکا ہے۔ ایک طویل عرصے سے جو شعبہ حادثات میں نصب سی ٹی اسکین مشین تھی وہ خراب ہو چکی ہے۔ اس کو جو ہے وہ اب کئی سال بیت چکے ہیں، مگر انتظامیہ کی جانب سے اب تک جو ہے وہ اس سی ٹی اسکین کی مرمت نہیں کروائی جا سکی۔ تو شعبہ حادثات کے جتنے مریض تھے ان کو سرجیکل ٹاور میں لے کے آیا جاتا تھا، جہاں پر نئی سی ٹی اسکین مشین جو ہے وہ نصب کی گئی تھی، اور وہاں پر جو ہے ان کو سی ٹی اسکین کی سہولت فراہم کی جاتی تھی۔ مگر اب جو سرجیکل ٹاور میں نصب سی ٹی اسکین مشین ہے اس کو بھی خراب ہوئے کئی دن بیت چکے ہیں، اور اب تک انتظامیہ کی جانب سے جو ہے وہ ان سی ٹی اسکین مشینوں کی جو ہے وہ مرمت نہیں کروائی جا سکی، جس کی وجہ سے شعبہ حادثات کے آنے والے مریض اور خصوصی طور پر جو کرونا وائرس کے مریض ہیں ان کو HRCT کی جو سہولت ہے وہ ملنا بند ہو چکی ہے۔ جو مریض ہیں، جو مجبور مریض ہیں، ان کو اب تشخیصی سہولیات کے حصول کے لیے جو ہے وہ نجی جو لیبارٹریز ہیں ان کا رخ کرنا پڑتا ہے۔ ان کی جانب سے یہی مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ مہنگی کروڑوں کی جو مشینیں نصب کی گئی ہیں ان کو جو ہے ان کی مرمت کروائی جائے اور ان کو فنکشنل رکھا جائے، تاکہ بآسانی جو انتہائی اہم تشخیصی سہولیات ہیں وہ حاصل کی۔ بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا۔ لاہور سمیت پنجاب بھر کے 4 لاکھ اساتذہ کے لیے بری خبر ہے۔ حکومت نے اساتذہ کو ٹائم سکیل پروموشن دینے پر پابندی عائد کر دی ہے۔ اساتذہ کے ٹائم سکیل پروموشن پر پابندی سے محکمہ خزانہ کو ماہانہ کروڑوں روپے کی بچت ہوگی۔ جنید ریاض سے بات کریں گے۔ جنید بتائیے گا۔ جی، اگر پنجاب بھر کی بات کی جائے تو وہاں پر تقریباً 4 لاکھ اساتذہ ہیں، اور اگر لاہور کی بات کی جائے تو لاہور میں بھی تقریباً 20 سے 25 ہزار اساتذہ ہیں جو کہ ٹائم سکیل پروموشن کے حقدار ہیں۔ اور یہ ٹائم سکیل پروموشن تب دی جاتی ہے جب ایک گریڈ کے اوپر ٹیچر جو ہے وہ اپنے 10 سال مکمل کر لیتا ہے اور اس کو پھر بھی پروموشن نہیں ملتی، تو ایسی صورتحال میں اس کو ٹائم سکیل پروموشن جو ہے وہ دی جاتی ہے، اور 10 سال کے بعد یہ پروموشن ملتی ہے۔ اور اس کے اوپر محکمہ خزانہ نے پابندی عائد کروا دی ہے، اور جن اساتذہ کو اس سے قبل ٹائم سکیل پروموشن ملی تھی وہ بھی ادائیگیاں اساتذہ کو واپس کرنا ہوں گی، اور یہ بہت بڑا ظلم ہے اساتذہ کے اوپر کہ پروموشن ملنے کے باوجود جو ہے وہ ادائیگیاں جو ہیں وہ واپس کرنی ہوں گی، اور دوسری جانب اس سے محکمہ خزانہ کو کروڑوں روپے کی جو ہے وہ ماہانہ بچت ہوگی۔ اور اس کے اوپر پنجاب ایسوسی ایشن آف سبجیکٹ اسپیشلسٹ نے ایک تو عدالت سے رجوع کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اور دوسرا احتجاج کا بھی اعلان کیا ہے کہ اگر ان سے پیسوں کے واپس ادائیگیاں یا ریکوریاں کی گئیں تو وہ بھرپور احتجاجی مظاہرہ کریں گے۔ جی ٹھیک ہے جنید ریاض، ابھی آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا۔ اسی پر مزید بات کرنے کے لیے صدر پنجاب ایسوسی ایشن آف سبجیکٹ اسپیشلسٹ رانا عطا بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ یہ بتائیے گا کہ پنجاب بھر کے 4 لاکھ اساتذہ جو ہیں ان کو ٹائم سکیل پروموشن اب نہیں ملے گا، کیا کہیں گے آپ؟ جی 4 لاکھ اساتذہ کو صرف ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے یہ ٹائم سکیل واپس لیا گیا ہے۔ یہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے ستیلی ماں کا سلوک کیا جا رہا ہے۔ 52 ڈپارٹمنٹ ہیں جس میں ججز بھی شامل ہیں، جس میں جتنے محکمے شامل ہیں ان سب سے واپس لیا جانا چاہیے۔ یہ گورنر نے دیا ہے، اس کو دیا ہے۔ صرف ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے 4 لاکھ اساتذہ سے واپس لینا کتنی بڑی زیادتی ہے، اور ہمارے ساتھ ہی ایسا سلوک کیوں کیا جا رہا ہے؟ ہم اس کے خلاف کریں گے، ہم اس کے خلاف جو ہو سکتا ہوگا وہ کریں گے۔ یہ اساتذہ سے رزق روٹی چھین لینا یہ تو بہت زیادتی ہے، اور ہم اس کو کنٹرول کرتے ہیں۔ فائدہ نقصان دینے کے لیے انہوں نے جو ہے وہ دیکھا ہوا ہے۔ یہ جو سیکرٹریز ہیں وہ 1.5 ڈیڑھ گنا جو ہے زیادہ تنخواہ لے رہے ہیں، تو ہمارے جو ہے جو چند چھوٹا سا الاؤنس ہمیں دیا ہے 5 3 ہزار 4 ہزار 6 ہزار کا، وہ بھی ہم سے واپس لیا جا رہا ہے، اور واپس لے لیا گیا ہے۔ ہم عدالت عالیہ میں جائیں گے، ہم سڑکوں پہ آئیں گے، ہم احتجاج کریں گے، اور ہم احتجاج کرتے ہیں اس بات پہ کہ یہ ہمارے ساتھ جو ہے یہ ناانصافی جو ہو رہی ہے ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں۔ جی بہت شکریہ رانا عطا صاحب، صدر پنجاب ایسوسی ایشن آف سبجیکٹ اسپیشلسٹ، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے، اور جنید ریاض آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا، آپ دونوں کا بہت شکریہ۔
सोई नॉर्दर्न गैस कंपनी की लेबर ने काम छोड़ हड़ताल कर दी है। ठेकेदारों ने उजरत में इजाफा न करने पर काम छोड़ हड़ताल का ऐलान किया है। हड़ताल की वजह से लाहौर समेत तमाम रीजन्स में तरक्याती काम मुंजमद हो गए। मीटर्स की तनसीब, पाइपलाइंस को बिछाने का काम भी रोक दिया गया है। बात करेंगे ज़ेर ज़मीन लीकेज की शिकायत का अजाला करने के काम को भी रोका गया है। गैस चोरी के खिलाफ ऑपरेशन करने वाली टीमों ने भी काम करना छोड़ दिया है। 3 साल से लेबर की उजरत में इजाफा न होने पर हड़ताल का ऐलान किया गया है। सोई नॉर्दर्न गैस कंपनी की लेबर ने काम छोड़ हड़ताल कर दी है। 1 जुलाई से मजदूरों की कम अज कम उजरत 20,000 करने का मामला, मुसव्विदे पर एतराज़ात, तजावीज़ पर गौर के लिए स्टेक होल्डर्स का इजलास तलब। हुकूमत ने सहफरीकी स्टेक होल्डर्स को इजलास के लिए ओपन कॉल दे दी। माइनर लेबर वेलफेयर, भट्टा मजदूर यूनियन, टेक्सटाइल सेक्टर के नुमाइंदगान को शिरकत की दावत दी गई है। स्टेक होल्डर्स 26 मई को टाउनशिप में इजलास में शिरकत करेंगे। इजलास का इनेकाद इंडस्ट्रियल रिलेशन इंस्टीट्यूट टाउनशिप में किया जाएगा। आपको बता रहे हैं कि 1 जुलाई से मजदूरों की कम अज कम उजरत 20,000 करने का मामला, मुसव्विदे पर एतराज़ात, तजावीज़ पर गौर के लिए स्टेक होल्डर्स का इजलास तलब किया गया है। हुकूमत ने सहफरीकी स्टेक होल्डर्स को इजलास के लिए ओपन कॉल दे दी है। और ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। अब जायदाद की फर्द के लिए इधर उधर नहीं जाना पड़ेगा। वज़ीर आला पंजाब ने माल मरकज़ के क़याम की मंजूरी दे दी है। ओवरसीज पाकिस्तानियों को ज़मीनों की फ़र्दें हासिल करने में मुआवनत दी जाएगी। माल मरकज़ में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का ऑफिसर हर वक्त मौजूद होगा। माल मरकज़ के TOR भी बनाए जाएंगे। बात करेंगे कज़ाफ़ी भट्ट से। कज़ाफ़ी भट्ट, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल जी, ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए एक ये बड़ा मसला था कि उनको जायदाद की फर्ज के लिए एक से दूसरे महकमे में जाना पड़ता था, लेकिन अब इस मसले का हल इस तरीके से निकाला गया है कि माल मरकज का क़याम जो है उसकी मंजूरी दी गई है। और ये माल मरकज जो है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के दफ्तर में कायम किया जाएगा, जहाँ पे एक बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का अफसर हर वक्त मौजूद होगा जो सिर्फ ओवरसीज पाकिस्तानियों की जायदाद की फर्ज के लिए काम करेगा। इस माल मरकज के TOR बनाए जा रहे हैं, जबकि माल मरकज का जो इफ्तिताह है वो अगले चंद रोज में वजीर आला पंजाब खुद करेंगे। वाइस चेयरमैन OPC चौधरी वसीम का कहना है कि माल मरकज का क़याम एक खुश आइंद इक़दाम है और इससे ओवरसीज पाकिस्तानियों की जो जायदाद है उसकी फर्दों के अलावा रेवेन्यू से मुतल्लिक जो मामला हैं उनमें भी मुआवनत मिलेगी। जी, बहुत शुक्रिया कज़ाफ़ी भट्ट, आप हमें अपडेट कर रहे थे। और शहर की सराफा मार्केटों में एक मरतबा फिर सोने की कीमतों में तेजी। सोने की कीमत में 600 रुपए फी तोला इजाफा किया गया है। 24 कैरेट फी तोला सोना 1,10,100 रुपए का हो गया है, जबकि 24 कैरेट फी तोला सोने के नर्ख 1,0925 रुपए मुकर्रर किए गए हैं। 22 कैरेट फी तोला सोने की कीमत 96,337 रुपए मुकर्रर की गई है। फी तोला चांदी की कीमत 1,465 रुपए रही है। बात करेंगे शहजाद खान से। शहजाद खान, बताइएगा। आज बिल्कुल शहर की सराफा मार्केटों में एक मरतबा फिर सोने की कीमतों में तेजी का सिलसिला जारी है। आज शहर के सराफा बाजारों और मार्केटों में सोने की कीमतों में 600 रुपए फी तोला का इजाफा देखा गया है, जिसके बाद 24 कैरेट फी तोला सोना 1,10,100 रुपए में फरोख्त किया गया और इसके अलावा 22 कैरेट फी तोला सोने के नर्ख 1,0925 रुपए रहे, जबकि 21 कैरेट फी तोला सोने की कीमत 96,337 रुपए रही और इसी तरह फी तोला चांदी की कीमत 1,465 रुपए रिकॉर्ड की गई। बहुत शुक्रिया शहजाद, आप हमें अपडेट कर रहे थे। शहर की पनागाहों में सर्विस डिलीवरी मेयार के मुताबिक नहीं। महकमे सोशल वेलफेयर ने सर्विस डिलीवरी मेयार के मुताबिक ना होने को तस्लीम कर लिया है। मजीद बात करेंगे उस्मान अलीम से। उस्मान, बताइएगा। जी बिल्कुल, शहर में बनाई गई पनाहगाहों में इंतज़ामात और सर्विस डिलीवरी मेयार के मुताबिक नहीं। महकमा सोशल वेलफेयर और बैतुल माल ने इसको ख़ुद भी तस्लीम कर लिया और इसी हवाले से सर्विस डिलीवरी की बेहतरी के लिए सिफारशात जो हैं वो काबीना कमेटी बराए ख़जाना को अरसाल की गई, जिसमें ये कहा गया कि महकमा सोशल वेलफेयर के ज़ेरे इंतज़ाम जो लाहौर में 5 पनाहगाहें बनाई गई हैं, वहाँ पर बाज़ दफ़ा सर्विस डिलीवरी जो है वो मेयार के मुताबिक नहीं दी जाती, जिसकी बड़ी वजह ये है कि फ़ंड्स की कमी और इसके अलावा जो इंतज़ामी सीटें
हैं वो ना होने के बराबर हैं, जिसकी वजह से सर्विस डिलीवरी जो है वो बेहतर नहीं की जा सकती। और एक जो मॉडल पाकिस्तान बैतुल माल की जानिब से इस्लामाबाद में पनाहगाह का बनाया गया, उस स्टैंडर्ड को मीट करने के लिए यहाँ पर मज़ीद अमले की ज़रूरत है। तो इसी के पेश नज़र 150 नई असामियाँ जो हैं वो क्रिएट करने की सिफारिशात जो हैं वो काबीना को अरसाल की गई, जिसमें 50 जो हैं वो मौजूदा पनाहगाहों के लिए फ़ी पनाहगाह 10-10 बंदे रखने की सिफारिशात जो हैं वो की गई हैं। और इसके अलावा जो रेंटेड बिल्डिंग्स में जो पनाहगाहें बनाई जानी हैं वहाँ पर भी बेहतर सर्विस डिलीवरी के लिए मज़ीद जो हैं वो 16 करोड़ से ज़ायद के फ़ंड्स जो हैं वो मांगे गए हैं। इब्तदाई तौर पर 5 करोड़ रुपए के फ़ंड्स जो हैं वो दिए गए। बहुत शुक्रिया उस्मान, आपने हमें अपडेट किया है। और इलेक्ट्रिक गाड़ियों के शौकीन अफराद के लिए अच्छी खबर है। इलेक्ट्रिक गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन पर अब 50% रियायत मिलेगी। इलेक्ट्रिक गाड़ियों के टोकन टैक्स फीस में शहरियों को 75% छूट दी जाएगी। मजीद बात करेंगे अली रामे से। अली रामे, बताइएगा, एक अच्छी खबर सामने आई है। जी बिल्कुल, इलेक्ट्रिक व्हीकल जो हैं उनकी गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन के हवाले से एक बहुत ज़्यादा मसला था, जिसके लिए जो कि शौकीन अफराद थे उनको एक्साइज डिपार्टमेंट से रजिस्ट्रेशन करवाने में बहुत ज़्यादा मुश्किलात थी। अब इस पर पंजाब हुकूमत ने फैसला ये किया है कि आइंदा माली साल 2021-22 का जो बजट पेश किया जाना है जून के अंदर, तो उसमें अब जो महकमा एक्साइज की तजवीज़ थी कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों के ऊपर जो 50% है रजिस्ट्रेशन के ऊपर वो रियायत मिलेगी। अब उसके साथ ही जो टोकन टैक्स की फीस है सालाना, उसके ऊपर 75% की छूट जो है वो पंजाब हुकूमत देगी। और इस पर महकमा एक्साइज ने ये मुख्तलिफ तजवीज़ जो है वो रिसोर्स मोबिलाइजेशन कमेटी पंजाब को साल की थी, जो मंजूर करने की, और इसको आइंदा माली साल के बजट में शामिल किया जाएगा। जिसके बाद जो इलेक्ट्रिक गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन के हवाले से और उनके टोकन टैक्स के हवाले से जो रियायत है तो उसका इतलाक जो है वो 1 जुलाई से होगा। अब इसमें क्योंकि एक पॉलिसी भी अभी वफाक के साथ मशावरत जारी है कि जो कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों के हवाले से है, जो उनके वोल्टेज के हवाले से कि उनकी रजिस्ट्रेशन किस हिसाब से उनसे पैसे लिए जाएंगे, उस पर एक नई पॉलिसी बनाई जा रही है। और वो पॉलिसी 1 जुलाई से उस पर अमल दरामद जो है वो शुरू किया जाएगा वफाक के अहकामात के बाद। और उसके बाद इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बाकायदा जो रजिस्ट्रेशन है वो उस हवाले से जो एक नई रायत पंजाब हुकूमत देने जा रही है, उस नई रायत के मुताबिक उनकी रजिस्ट्रेशन होगी और टोकन टैक्स की अदायगी होगी। इससे पहले भी शहरियों की तरफ से शिकायत की जाती है कि उनसे रजिस्ट्रेशन की फीस जो है वो बहुत ज्यादा मसरूफ की जाती है। तो इसी पर पंजाब हुकूमत ने फैसला किया कि अब उनको 50% रायत दी जाएगी उनके वोल्टेज के हवाले से, लिहाजा ताकि ये दोस्त माहौल गाड़ियां जो है वो पाकिस्तान में आ सके और पंजाब में आ सके। जी बहुत शुक्रिया अली रामे, आपने हमें अपडेट किया। कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान का कारोबारी तबके के लिए बड़ा इक़दाम, वर्कर्स के लिए सेक्रेटोरियल वैक्सीनेशन जारी करने का फैसला किया है। लिस्टें मुरतब करनी शुरू कर दी गई हैं। आगाज़ जून के पहले हफ्ते में होगा। बात करेंगे दौरे नायाब से। दौरे, बताइएगा, सेक्टोरियल वैक्सीनेशन का फैसला किया गया है। जी बिल्कुल, कमिश्नर लाहौर डिवीज़न कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान का ये बहुत बड़ा फैसला सामने आया है कि अब रूटीन से हट के एज वाइज जो शहरी हैं उनको भी छोड़कर जो रूटीन में उनकी वैक्सीन चल रही है वो तो अपनी जगह चल रही है, शेड्यूल के मुताबिक भी चल रही है, वॉक इन वैक्सीनेशन भी चल रही है। इसके अलावा बैरून मुल्क सफ़र करने वाले अकामा होल्डर्स की वैक्सीनेशन भी अपनी जगह चल रही है। लेकिन अब सेक्टोरियल वैक्सीनेशन का फैसला किया गया है। सेक्टर वाइज प्रायोरिटी सेक्टर्स पे तरजीह दी जाएगी और जो ख़ास तौर पे ऐसे सेक्टर्स हैं जिनका रोज़मर्रा में लोगों से, शहरियों से, कस्टमर से बहुत ज़्यादा इंट्रैक्शन है, उनको भी वैक्सीनेशन दी जाएगी। ये बहुत बड़ा फैसला किया गया है। इसमें तमाम सेक्टर्स हैं। अगर बात की जाए तो कारोबारी सेक्टर्स हैं जिसमें होटल मैनेजमेंट के अंदर, आपकी मार्केटिंग डीलिंग के अंदर, पब्लिक डीलिंग के अंदर, ब्रांड स्टोर्स के, चेन स्टोर्स के, डिपार्टमेंटल स्टोर्स के तमाम वर्कर्स को, और पेट्रोल पंप फ़र्ज़ करें जिस तरह के हैं उसमें काम करने वाले वर्कर्स की वैक्सीनेशन की जाएगी। इस हवाले से लिस्टें मुरतब करना शुरू कर दी गई हैं और लाहौर डिवीज़न के असिस्टेंट कमिश्नर प्रोटोकॉल की ये जिम्मेदारी उनको डाली गई है कि वो इसकी लिस्टें मुरतब करें। तमाम बिजनेसमैन कम्युनिटी से रब्ता किया गया, वो अपनी लिस्टें फराहम करेंगे और आम जो शहरी हैं उनको प्रायोरिटी पे जिनका कारोबार के जरिए। आप हमें अपडेट कर रहे थे और न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।